फ्रैंकली MBA करने का बिल्कुल मेरा इरादा नहीं था. आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन MBA एंड एक्चुअली अगर थोड़ा पीछे जाते तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था मेरा. द फ्रेंड्स यू मेक इन योर कॉलेज इन दोस ग्रेजुएशन नॉट पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA वाले कमीने होते हैं. जो IIMs में जाते हैं उनके सींग होते हैं, अजीब अजीब जानवर होते हैं, तो वो भी लोग कहे IIM बैंगलोर से तो अच्छा ही होगा. ठीक है, बेनिफिट आउट तो हमको हर कोई दे देगा उसमें. So to me, one of the biggest drawbacks of the current pattern of this paper is the 3 sectional terms. You make this paper, retain the paper as it is. I don't have problem. You need to first be very honest and शीशे देख के पूछना चाहिए भैया औकात है रिपीट करने की कि नहीं. Do I think if I repeat, I am going to improve my score significantly? If I am at 92 percentile this year and next year again I get a 95, 96, I'll still get the same set of colleges. It is not that they're going to change. English is overemphasized. The number of brilliant students I see on the wayside because CAT को अंग्रेजी में इतना अहमियत दी है is phenomenal. You're already a few miles ahead of all your peers, irrespective of which business school, which company you joined. So congratulations to you on that. This is now 7th year that we are doing Konversations Cafe. I think the original idea with Konversations Cafe always was that, career, what to do about the future, life mein kya karna hai. All of these things are typically spoken about in classrooms, hostel corridors. We thought thoda usko cool banaya jaye. Why not talk about careers in a brewery, right? The next speaker that we have, guys, is somebody that all of you already know. It's a great privilege that I have to welcome him on stage because I was preparing for CAT about 15 years back, and at that point of time, I used to kind of, read his articles. Of course, it was a pre-smartphone era, so there weren't that many, easily accessible videos. But you would still get content, via somebody, in CDs, etc., of sessions, etc., seminars that he would do. So it's my great privilege to, welcome Gautam Puri sir on stage. Sir, please, if you can join us. Thank you. Gautam sir, obviously you all know, is almost Mr. Career Launcher, especially the MBA side of things. Is also an IIM Bangalore alumnus. I'm going to obviously try and understand, what his journey has been like, and then we'll ask all the questions that you want to ask him, which obviously are connected to things that are currently immediately in your minds, connected to what happens with the CAT result and what to do next, etc. I just find it fascinating that सर ने तब सिखाना शुरू कर दिया था कैट के बारे में जब none of you were even born, which I just find quite incredible. मुझे मेरी उम्र बता दो. I'm just saying that you started teaching before anybody here was even born. So I think they should all know that they're meeting somebody who he's seen every single avatar of the CAT, of the evolution of the IIMs, the MBA in India. So I think, I hope that this is a super insightful and rich session for all of us. So, sir, I think I don't want to delve too much upon, how much experience you have, but I think, sir, you were an engineer at Punjab University, and then you went to IIM Bangalore at a time when I think तभी 3 ही IIM हुआ करती थी, 4 IIM हुआ करते थे तभी उस टाइम पे. So tell us about those days. How did you end up in an IIM, और तभी उतना पॉपुलर था क्या वो? First of all, frankly MBA करने का बिल्कुल मेरा इरादा नहीं था. I was never interested in MBA and actually अगर थोड़ा पीछे जाते तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था मेरा. ठीक है. So and I in fact काफ़ी चीज़ें जो मैं बोलूँगा सुबह एक सेशन लेके आ रहा हूँ उसी को रिपीट करूँगा मैं उसमें. But I think that context is important for all of you. In school I was at the bottom as far as my academics went. So अगर मेरी क्लास में 32 जने पास होते तो you can be very sure Gautam Puri will be rank 32. I never failed. I was the last person to pass. Okay. So even engineer बन गया, यही गनीमत है. Engineer इसलिए बन गया क्योंकि थोड़ी बहुत मैथ्स आती थी and केमिस्ट्री झेल नहीं पाता था. बायोलॉजी बिल्कुल समझ नहीं आती थी. So obviously that meant कि कुछ करके एक साल ड्रॉप किया. Punjab University, Chandigarh, became an engineer, and that was the first time actually when I started studying.
एंड देन इज व्हेन आई रियलाइज कि यार क्लास में सुन लो तो समझ आ जाता है. तब तक मेरा रूल होता था, यू वुड बी सिटिंग इन द लास्ट और द सेकंड लास्ट बेंच टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स. जो आगे बैठे उनको तंग करो, चौक फेंको, जो भी करो. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट, बट दोज आर द थिंग्स आई वाज इंटरेस्टेड इन मोर. एंड थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेलता था, बट कुछ खास उसमें भी नहीं था. व्हेन आई वेंट इनटू इंजीनियरिंग after dropping a year, I had what is called zero achievements, because many people say कि achievements वगैरह होनी चाहिए. मैं कहा कुछ नहीं था मेरा उसके अंदर इंजीनियरिंग में, लेकिन एक अच्छा काम हो गया, समझ आ गया क्या करना होता है. एंड I changed a lot, and as I said, I changed the way I studied, etc. And one of my biggest achievement I would say was कि मेरे बैच का आधा बैच जो है ना वो मेरी बदौलत पास हुआ है. कभी एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बैठ के, कभी हॉस्टल में उनको पढ़ा के. सो दोनों चीज़ें की हैं. And so that was one great time I had, and I loved engineering. Those 4 years were great for me. And though my family, everyone said, "Yeah, तू MBA कर सकता है," because मेरे को कुछ आता ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था. कॉम्पिटेटिव एग्जाम हमेशा निकाल लेता था मैं, और स्पेशली विट वाज MCQ. ठीक है, वो हमेशा निकाल लेता था. तो माय फैमिली सेड कोशिश करो. मैं कहा नहीं, करना ही नहीं है. आई जॉइंड HPCL in Bombay in the refinery, and frankly I had a great time there. But very soon I realized कि यार HPCL, like any other सरकारी कंपनी, अगर तुम काम करोगे तो नुकसान हो जाएगा. बिकॉज इफ यू वर्क समवेयर और द अदर यू विल मेक अ मिस्टेक. गलती वो बिल्कुल नहीं करता जो काम नहीं करता है. ठीक है ना. काम करने वाला कभी ना कभी गलती करेगा, एंड यू विल गेट स्टक विद दैट स्टिग्मा फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एंड यू विल नॉट ग्रो. सो आई सेड बॉस, ये निकलना होगा, गलती हो गई, आगे ढूंढते कुछ और. अप्लाई करना शुरू किया. दिस इज लाइक सर सेइंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट ही मत करो तो नेगेटिव मार्क्स से नहीं मिलेंगे. भाई वही है ना कहानी. तो बिल्कुल वो है, 0 आउट ऑफ 100 लेके बैठ जाओ. तो वो वही था उसके अंदर. खाली उसमें था, गलती नहीं करोगे तो प्रमोशन हो जाएगी, क्योंकि तुमने गलती करी हुई है तो प्रमोशन रुक जाएगी तुम्हारी. ठीक है. सो ये तो डबल नेगेटिव वाली कहानी थी हमारी. तो मैंने अप्लाई करना शुरू किया. पता चला यार कि यार यू आर फ्रॉम अ सेकंड टायर और नॉट अ टॉप लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज. तो आधे लोग बुलाते भी नहीं थे, और जो बुलाते थे बताते थे तुम उस कॉलेज से नहीं, इसलिए तुमको नहीं लेंगे. मैं कहा बुला क्यों नहीं भैया. ठीक है. तो मैं कहा बहुत हो गया. इंजीनियरिंग में कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा. बाहर जाने का बिल्कुल इरादा नहीं था मेरा. आई वाज इनफैक्ट आई हैड ऑफर्स आल्सो टू गो अब्रॉड. एक बार अप्लाई किया था, बट आई वाज नॉट कीन एट ऑल. आई वांटेड टू स्टे इन इंडिया. नो स्पेसिफिक रीजन, नॉट पेट्रियोटिक, जस्ट आज कभी सोचा नहीं उसके बारे में सीरियसली. सो आई सेड ठीक है यार, ये नहीं होता तो चलो MBA करते हैं. तो एक दोस्त जो था वहाँ पे, तब IMS होता था, वाज द ओनली प्लेयर. आई टुक हिज मटेरियल, स्टार्टेड गोइंग थ्रू द टेस्ट. एंड प्रॉब्लम ये थी, मैं रिफाइनरी में काम करता था. And if any one of you knows refinery, it is a 24-hour thing, and you have to work in the shifts. And उसमें एक और प्रॉब्लम थी, बैचलर. मोस्ट ऑफ द पीपल आर मैरिड. दैट मीन्स अगर किसी को डबल शिफ्ट करनी है तो गौतम पुरी ही होगा, क्योंकि उसकी बीबी है, उसके बच्चे हैं, उनको बाहर ले जाना, स्कूल का काम करना, तो भैया फंस जाते थे. एंड स्पेशली मॉर्निंग टू इवनिंग शिफ्ट वाज एवर नॉर्म उसमें, तो तैयारी नहीं हो पाती. तो बट समहाउ आई मैनेज दैट पार्ट. बैंगलोर हो गया तो उठ के चल दी वहाँ पे. तो ये मेरी बैंगलोर तक पहुँचने की कहानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. एंड रीजन एज आई सेड वाज वेरी वेरी सिंपल. बस करियर ग्रोथ नहीं दिखती थी, लगता था फंस जाएंगे यहाँ पे, कुछ होगा नहीं. एंड आई कुड नॉट सी माई सेल्फ गेटिंग रिटायर्ड एट द एज ऑफ 26, बिकॉज वो वही होता, चुपचाप बैठ के जो बोलते हैं करो, मत करो, चल जाएगा काम. सो दैट इज माय स्टोरी टुडे. तो सर कैंपस लाइफ कैसी थी तभी उस टाइम 80s में, लेट 80s में? Yeah, those 4 years in engineering were great. Yeah, they're very very. In fact, one of my, obviously I'm sure that is true for many people. The friends you make in your college, in those graduation, not post graduation. MBA वाले कमीने होते हैं. इंजीनियरिंग कॉलेज में यू ग्रो विद पीपल, यू मेक दोज मिस्टेक्स. वो सब लड़कियों को ताड़ना, लड़कों को भी आजकल ताड़ा जाता है वैसे तो. ठीक है. वो सब जो है कहते हैं दैट द ग्रोथ व्हिच हैपन, दोस बॉन्ड, दैट बॉन्डिंग व्हिच यू हैव विद स्टूडेंट्स, विद योर फ्रेंड्स, नो अदर बॉन्डिंग विल टेक इज इक्वलेंट टू दैट. So at least I strongly believe the friends you make in graduation are most probably the friends for your life. The friends you make in post graduation, some of them might be ग्रेजुएशन वाले. एंड इवन नाउ चंडीगढ़ में ऑलमोस्ट हर साल में 4 चक्कर लगी जाते, 4 ज्यादा बोल गया, 2-3 चक्कर लग जाते हैं. बट देन माय बेस्ट फ्रेंड्स आर स्टिल देयर. कभी उधर जाके होटल में रह लूं तो मेरी पिटाई हो जाएगी. ठीक है. इतने लोग हैं, इतने घर हैं, कहीं भी जाके रहते. तो एंड दैट वाज अ डिफिकल्ट पीरियड आल्सो. आई जॉइंड इंजीनियरिंग इन 84. दैट इज द ईयर व्हेन इंदिरा गांधी डाइड. वी हैड ऑपरेशन ब्लू स्टार. एंड शायद उस चक्कर में मेरा एडमिशन हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्योंकि उस साल इंजीनियरिंग बाय एडमिशन टेस्ट होना था पंजाब यूनिवर्सिटी में. 4-5 days before our final exams, the message came that सब कैंसिल हो गया है, छुट्टी हो गई, हॉस्टल बंद हो गए, अगले दिन घर पहुंच गए सबके सब वापस. एंड फाइनली द एग्जाम्स हैपेंड लेट.
and we got admission based on a 12th marks. उस टाइम पे प्री इंजीनियरिंग बोलते थे वहाँ पे. अगर एंट्रेंस एग्जाम होता तो यार नॉलेज बेस था, पता नहीं होता कि नहीं मेरा, तो बहुत ठीक ठाक निकल गया. जॉइंट केमिकल इंजीनियरिंग. So that was the year we entered. We joined late, obviously, because of Blue Star. We effectively started in October. But as I said, those 4 years were terrific. And sir, I think when you went to Bangalore today, it is like the startup capital of India. शायद सबसे अमीर लोग अब इंडिया के मुंबई में नहीं, अभी शायद बैंगलोर में रहते हैं. Quite possible. तो how was Bangalore back then? Yeah, आज का Bangalore, again, we are different generations completely. At that point of time, IIM Bangalore was about outside the city. I don't remember how many kilometers. Jayanagar, which is the closest colony, was about 3-4 kilometers. Other than that, but it was getting developed at that point of time. And now the city has gone beyond IIM Bangalore. Banerghatta National Park, मेरे ख्याल से वो जानवरों को भी निकालने के चक्कर में है. But the city has expanded. I think I have a clip with Bangalore. Bangalore could see कि दिल्ली ने अपने आप को कितनी अच्छी तरीके से बर्बाद किया है. उन्होंने exactly वही कट कॉपी पेस्ट किया. They did not learn from the mistakes of Delhi. Delhi ने बाद में ठीक कर लिया है. But when you look at the traffic problem which Bangalore had, they should not have had. They had time, they had space, they had examples all over the place to rectify those situations. कोरमंगला which was developed at that time, I think 94-95 के आसपास ही डेवलप होनी शुरू थी. उसमें देखोगे अभी भी बहुत narrow roads हैं because they were designed that way. So, but Bangalore then was great. For us it was great. And घूमने फिरने का तो था ही. And one of the best things for me as personally as Bangalore was, बहुत घूमा. एक बहुत सिंपल रूल होता था. फ्राइडे शाम को निकल जाओ, मंडे सुबह आ जाओ. 3 रात है, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट. एक रात होटल का खर्चा करेंगे, 2 रात बस में जाएंगे. फ्राइडे नाइट को बस ली, सुबह पहुंचे ऊटी, पूरा दिन उधर कहीं पे चेक इन किया, सैटरडे नाइट वहां की, संडे नाइट को निकल के बस में वापस आ गए. तो सस्ता सुंदर टिकाऊ ऐसे बहुत काम किए एंड घूमा बहुत है बैंगलोर. एंड वन थिंग आई रियलाइज्ड इन साउथ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, द रोड नेटवर्क इज टेरिफिक. इट वाज देन, इट इज नाउ आल्सो. एंड कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़ वगैरह से, जहाँ दिल्ली चंडीगढ़ 250 किलोमीटर करने में 7 घंटे लगते थे और हरियाणा रोडवेज की खराब सी टूटी हुई बस होती थी, ये यार ये तो जन्नत पे पहुंच गए थे लगता है हम लोग उसमें. तो बैंगलोर वॉज ग्रेट. वेदर तब भी अच्छा था, बिकॉज आज भी अच्छा है, क्योंकि अभी हम लोग कोशिश करके भी खराब नहीं कर पाए हैं. अदरवाइज कोशिश जारी है, पॉल्यूशन वगैरह के साथ साथ अगला नंबर उसका ही है. एंड बट या दैट्स एसेंशियली. सर, पढ़ाई के बारे में भी कुछ बताओ. आपने कैंपस पे कुछ पढ़ाई भी की थी IIM बैंगलोर में? नहीं, कुछ लोग पढ़ते हैं. मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट टर्म में, क्योंकि ट्राइमेस्टर होता है तो टर्म बोलते हैं, बहुत फाइट मारी. आई वॉज वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 3 years देन व्हेन आई जॉइंड IIM बैंगलोर. एंड लास्ट डे तक काम किया था ताकि पैसे मिल जाए. आई स्टिल रिमेंबर, मेरी संडे को वो थी ट्रेन लेके, मंडे को पहुंचना था, सैटरडे तक काम किया था ताकि भैया एक दिन का भी नुकसान ना हो. और उसके ट्यूसडे से हमारी बैच चालू था. तो हमारे IIM बैंगलोर में अभी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बट उस टाइम था कि इफ यू अमंग द टॉप 25% इन योर बैच, देयर वुड बी अ स्कॉलरशिप. मैंने कहा कोशिश करते हैं, क्योंकि पैसे कमाने की आदत थी, ज्यादा नहीं मिलते थे. आजकल बताऊंगा कितने मिलते थे, तुम बोलोगे इतने तो कैसे गुजारा होता था, बट मैं उसमें ही पैसे बचा लेता था. चलो बता देते हैं. माई सैलरी वॉज 1700 रुपीज फॉर 400 प्लस 405 रुपीज एज अलाउंस. सो 21,105 रुपीज पर मंथ, 24-25 हज़ार रुपये हो गए साल के. ठीक है, उसमें भी पैसे बचाता था मैं, क्योंकि मैं दारू नहीं पीता, मैं सुट्टा नहीं मारता, बाकी सब करता था, बट तो पैसे बच जाते थे. एंड दैट फंडेड माय एजुकेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट. उसमें था, एंड वो आदत थी कि यार कुछ कुछ तो पैसा आता है तो वो आते रहना चाहिए, तो स्कॉलरशिप की कोशिश करो. फर्स्ट सेमेस्टर अच्छी पढ़ाई की, टर्म में सब कुछ किया. अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, इन 3 सब्जेक्ट्स, हमारे देयर वर 3 सेक्शन इन आवर थिंग, A, B and C. आवर सेक्शन है. सेक्शन ए के टीचर्स ने डिसाइड किया कि हम 4 सब्जेक्ट्स के टीचर्स ने डिसाइड किया कि हम खाली 8 जनों को A ग्रेड देंगे. ठीक है, मैं नवा था 3 सब्जेक्ट्स में, एंड आई लॉस्ट दैट स्कॉलरशिप. मैं कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हाई बी लो या लो बी लो, बी तो बी होता है. मेरी एक भी सब्जेक्ट में A ग्रेड आ जाती, आई वुड हैव बीन इन द टॉप 25, स्कॉलरशिप आ जाती. मगर जब मिला नहीं है तो ठीक है, फिर पढ़ाई करी. ऐसा नहीं करी. फर्स्ट सेमेस्टर अच्छी करी, सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स फिर देन आई स्टार्टेड मैनेजिंग थिंग्स. एंड दूसरी एक और चीज होती है, आई हैड गॉन देयर आफ्टर वर्किंग फॉर 3 years, पढ़ने की आदत खत्म हो गई थी. आजकल तो तुम लोग टाइप करके निकाल लेते हो, लिखने की आदत भी खत्म हो गई थी. तब तो नोट्स तो लिख के ही बनाने होते, सबको लिखना होता था. एंड दैट वाज अ ग्रेट चैलेंज फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट
ability to sit for longer and read, that was missing, so that had to be developed. I think it took me 3 months to get back to normal. First semester का जो हुआ, उसके बाद then second, third, I think then things went on fine. पढ़ाई वगैरह ठीक हो गई, internship मिल गई, and Where did you intern? I interned in Delhi. उस टाइम पे there was a company called Shriram, उषा ग्रुप, ठीक है, DCM वाला, उनके साथ किया था. बेसिकली फ्रॉड प्रोजेक्ट था. कुछ खास काम नहीं किया था. मुझे दिल्ली आना था क्योंकि मैं उसके पहले 3 साल बॉम्बे था, उसके पहले 5 साल में 5 साल में चंडीगढ़ था. मैं कहा मेरे को 2 महीना आराम चाहिए, तो ढूंढ ढांड के प्रोजेक्ट लिया जो तंग नहीं करेंगे. तो हफ्ते में एक बार जाके उनको प्रोजेक्ट का अपडेट देता, बाकी टाइम घर पे आराम करता था. ठीक है. एंड फाइनल प्लेसमेंट फिर कहाँ पे हुई? फाइनल प्लेसमेंट ब्रिटानिया में हुई मेरी. आई वाज वेरी क्लियर दैट. एंड सॉरी, इफ जस्ट टू आई वांट टू कंपेयर, आपका सैलरी क्या था व्हेन यू जॉइंड एट ब्रिटानिया? मजे आ गए थे, 6 गुना हो गया था. ठीक है. फ्रॉम समथिंग लाइक 25,000 एनुअली इट बिकेम 1.5 लाख एनुअली. सो आजकल मुझे राम लगा लोग को 1.5 लाख महीना चाहिए होता है. हाँ, बट यार मैं बोल रहा लोग ये सब, यू नो, शी सेड शी गॉट 10,000 रुपीज अ मंथ एज द फर्स्ट सैलरी. आप बोल रहे हो 1.5 लाख. लोग एमबीए छोड़ के चले जाएंगे सब. नहीं, उस टाइम के हिसाब से इट वाज ग्रेट. उस टाइम के हिसाब से ऐसा नहीं था कि कम थी. इट वाज अ 1.5 lakh salary was good at that point of time in 93. Okay, so I don't think we should compare. ठीक है. हाँ, इंप्रेशन मारने के लिए अच्छा लगता है हमें इतने कम मिलते थे, बट रियलिटी है 1.5 lakh at my point of time 93 was a good salary to get. Okay, so I was very clear कि मार्केटिंग मेरी औकात नहीं है. फाइनेंस आती है, बेचना वेचना मुझे नहीं आता है, मुझे मालूम है अपने बारे में. ठीक है. ऑपरेशंस आता है. आई यूज्ड टू एंजॉय दोस थिंग्स, सो आई वाज वेरी क्लियर आई वुड वांट टू गो इनटू ऑपरेशंस एंड फाइनेंस रिलेटेड रोल्स, एंड दोस आर द सब्जेक्ट्स आई हैड चोजन फॉर माय सेल्फ इन द सेकंड ईयर आल्सो. यस, आई डिड अ कपल ऑफ मार्केटिंग आल्सो, बट मार्केटिंग में लाइक क्या लॉजिस्टिक्स हो जाता है, बाकी में फट जाती है. सो यानी सेल्स मार्केटिंग मेरी औकात नहीं है, वो सब बहुत जल्दी समझ आ गया. So I said, let me go there. And Britannia also, I was doing that only. I was into production planning, purchasing, and related functions. I think one thing you alluded to earlier was that your batch passed because of you. Not entire, half. Half your batch. but that was because maybe there was some teaching related inclination that you probably had at that time. तो ये career launcher वाली story कैसे शुरू हुई? And अभी तो आप 30 years से you've been a teacher. Yeah. And that's quite incredible for someone to continue on that journey. मतलब अभी ऐसा हुआ होगा बहुत सारे टाइम सर के आपके जो स्टूडेंट्स हैं, they would have learned from you and would have probably progressed so much in life, and you still decided to stay, you know, being a teacher. So how did this happen in your life? Okay, actually after engineering also मैंने सोचा था यार मास्टर्स करके PhD करके एकेडमिक्स में घुसते हैं. Never went into it because दिख गया था कि हम लोग टीचरों की कितनी इज्जत करते हैं. तो मैं कहा मेरे साथ भी यही होगा, मुझे ठीक नहीं लगता. सो ये क्लियर हो गया था कि फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर में तो शायद मेरा नहीं बनेगा इसमें. दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू. एंड टीचिंग कैसे चालू? इट जस्ट स्टार्टेड क्योंकि पढ़ाई में ठीक ठाक था, क्लास अटेंड करता था. ज्यादातर लोग तो क्लास ही नहीं अटेंड करते थे. बैच के एग्जाम के पहले बैठा के 15-20 जनों को, अच्छा कल के पेपर में के लिए ये करना, ये रट्टा मारो, ये आएगा, ये आने का चांस है. वैसे शुरू हुआ एंड दैट इट बिकेम अ नॉर्म उसके बाद. एंड दूसरा एक और होता था, जैसे मैंने थोड़ा हिंट भी दिया था कि कुछ लोग अंदर बैठ के एग्जाम देते थे, हम लोग बाहर बैठ के उनके आंसर बना के सप्लाई भी करते थे. ठीक है. हाँ, ऐसे भी किया है. ठीक है. ठीक है. सो बहुत सारी चीजें की हैं हमने इसमें. बट वंस आई गॉट इनटू ब्रिटानिया, हमेशा शायद शुरू से कुछ था कि यार अपना करना है. It was not Britannia related. Britannia was a great place to stay. Corporate office था, नौकरी अच्छी थी, पैसा अच्छा था, काम अच्छा था, and it was a place where I could have easily made my career. But वो कुछ किया था कि यार कुछ अपना करना है. And I realized कि यार बैंगलोर मेरा बेस नहीं है. I am all my life I've been in North. बेस दिल्ली है, तो यार नौकरी छोड़ के दिल्ली चल के कुछ देखते हैं, वहाँ कुछ करेंगे. So I quit Britannia, joined VAM Organics in Delhi and came back. कि आके कुछ अपना करना है यहाँ पे. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आई लैंडेड इन दिल्ली. उसके अगले दिन सत्या का फोन आ गया. सत्या इज माय बैचमेट फ्रॉम IIM Bangalore एंड ही एक्चुअली स्टार्टेड करियर लॉन्च. आई एम द सेकंड पर्सन इन इट. कहते हैं तू आ गया? मैं कहा आ गया हूँ. कहते हैं यार इधर कुछ मैं कर रहा हूँ, कल क्लास के लिए आ जा. मैं कहा ठीक है आ जाते हैं. आई कुडंट गो फॉर दैट क्लास, बट बाद में आई स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग एंड आई रियलाइज यार ये अच्छा काम है, अपना करना ना. कुछ पढ़ाने का पहले से था बैकग्राउंड में, क्या पढ़ाना आता है और कुछ कर देना करे, ये तो कर लेंगे. So then we just started. He started the process. I joined him. He started in 94 mid. I joined him in 95 Jan Feb. And then it started. And by the time the first season of PDP ended,
क्योंकि मुझसे पहले someone was asking her about GD इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, मैं बहुत अच्छा बताऊंगा, अपना प्रोग्राम भी बेच दूंगा, इतनी सेल्स आती है, ठीक है, ठीक है. सो उसमें है तो वो आराम कर लेंगे उसमें, बट ये समझ आ गया ये अच्छा है काम, ये समझ आता है, ये करना आता है, मजे आते हैं. एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट आवर वर्क इज वी आर नॉट कनेक्टेड टू बुढ़े लोग, ठीक है. एंड व्हेन आई से बुढ़ा आई टॉक अबाउट मेंटली बुढ़े जो cynical हो जाते हैं. when you are meeting with kids, when you meet with young people, you meet with people who are looking forward to the future, जो गलतियां नहीं ढूंढ रहे हैं. एंड ये बहुत कमाल की चीज है हमारे काम में. आई थिंक दैट इज व्हाट सस्टेन्स अस. जो है ना कि 30 साल कैसे, यार 30 साल और निकल जाएंगे. मुझे कभी पीछे किसी ने बोला था, सो टिल व्हेन डू यू थिंक टीच, मैं जब तक मर नहीं जाते पढ़ाते नहीं है. कहीं भी बैठ के आजकल तो बहुत आसान है, टैबलेट खोलो, लैपटॉप खोलो, शुरू हो जाओ. एक्चुअली दिस इज व्हाट सस्टेन्स मी. वी हैव टू सी, वन ऑफ द थिंग्स पीपल ऑलवेज लुक फॉर इज कि जो मुझे पसंद है वो करूंगा. जो पसंद है वो करने के साथ साथ 25 काम ऐसे करने होते हैं जो पसंद नहीं होते, ठीक है. आई एंजॉय टीचिंग, बट उसके साथ मुझे फाइनेंस भी देखना है. सेल्स मार्केटिंग नहीं आती, लेकिन ज्ञान उधर भी देना पड़ता है, ठीक है. कुछ और चीजें देखनी पड़ती है. तो यू डू 20 अदर थिंग्स व्हिच यू डोंट एंजॉय फॉर दैट वन थिंग व्हिच यू एंजॉय. एंड दैट इज व्हाट is the case for me, that classes, teaching, interacting with students is great, and that is what I want to do for the rest of whatever is my life left. And चलता रहेगा with or without career launcher. Tell us about some of the initial years. अभी जैसे what subjects did you choose to pick up, and why did you teach those, and what was it that Satya was doing? How did you build the whole team of Career Launcher? Okay, so career launcher actually started with PDP, which is for GD interview preparation. And उसके सत्या ने बहुत कमाल का काम किया था. He is the sales and marketing person. मैं बिल्कुल नहीं हूँ. In 94, he did what was called mock CAT. तब तक होता भी नहीं था ऐसी कोई चीज. He conducted a mock CAT in Delhi University, in Sri Ram's, SICC, Stephens, 4-5 अच्छे कॉलेजेस में कन्वर्ट करके 400 बच्चों का पेपर करा, उनको फीडबैक दिया, एंड उधर बहुत अच्छा बेचा हमने उसने खुद को कि IIM बैंगलोर, ठीक है. क्योंकि लोग समझते हैं जो IIMs में जाते हैं उनके सींग होते हैं, अजीब अजीब जानवर होते हैं, तो वो भी लोग कहे IIM बैंगलोर से तो अच्छा ही होगा, ठीक है. बेनिफिट आउट तो हमको हर कोई दे देगा उसमें. So he sold that. He gave them good service in terms of helping them analyze where were they wrong, what are they doing right, how to improve, and he just helped them in the written test part. And the moment written test happened, after that he shifted gear to PDP. कि बॉस हो गया है, मैथ्स इंग्लिश तो फिर भी आती, इंटरव्यू का मालूम है. He did a couple of mock interviews, told them कि बॉस इंटरव्यू आसान नहीं है, and then he sold. I think first year he did about 75-80 students of PDP. I was not a part of that. I except in the second part, February March में किया था, तो I interacted with some 30-35, and that is what set the ball rolling उसमें. And then the Satya at that point of time was working with Zambaxi. I was in VAM Organics, दोनों नेहरू प्लेस में ही थे. Time बहुत था because I joined as EA to MD, and there was also already another EA to MD जो ज्यादातर काम करता था. मेरे को ज्यादा काम मिला नहीं, तो ज्यादा काम मिला नहीं तो फिर इधर काम हो गया मेरा, ठीक है. सो कई बार कहता हूँ अगर उधर एक और EA to MD नहीं होता तो मेरा शायद वहीं पे बैठा होता, बट ठीक है. सो दैट हैपेंड. एंड इन करियर लॉन्चर शुरू में तो बोथ ऑफ अस देन सैट डाउन एंड सेड यार आगे क्या करना है. फर्स्ट ईयर इन जुलाई अगस्त वी सेड ओके, दोनों नौकरी छोड़ेंगे तो कुछ नहीं चलेगा, तो एक नौकरी छोड़ता है, एक काम करता है, वो फंडिंग होती रहेगी. सो सत्या क्विट हिज जॉब. उसमें ज्यादा इंथू था, मुझ में शायद थोड़ा कम इंथू था, प्लस सेल्स मार्केटिंग का ज्यादा काम था, वो उसकी औकात थी, मेरी नहीं थी. And so he quit. I continued working, and I continued working till next March. March end, 15th March 95, I quit. And Satya in शुरू किया this year again. We did mock CAT, and we did something which was again completely unheard of at that point of time. We conducted a mock CAT with about maybe 2,000-3,000 students. मेरे को exact number याद नहीं. OMR sheet scanning कराई हमने. उस टाइम तक किसी को मालूम ही नहीं था OMR sheet क्या होती है. But so ऐसी जो भी नई चीज आती ना, we are sucker for technology. कोई नई चीज आती है हमको एक्सपेरिमेंट करके देखना है, और 90% फेल होते हैं, लेकिन वो 10% जहां काम आ जाते हैं वो हमको आगे खींच के ले जाते हैं. तो ये किया, एंड दैट नेक्स्ट द ईयर आफ्टर दैट इट बिकेम एन ऑल इंडिया काइंड ऑफ अ थिंग. इस साल भी कोशिश की थी, 4-5 शहरों में और हुआ. ऑल इंडिया उसको भी बोल देते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं था. एंड देन उसके बाद नौकरी छोड़ने की बारी आ गई मेरी भी उसमें. एंड दैट वाज टाइम जो बोलते हैं ना व्हाट स्ट्रगल्स. सो एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता था हमसे, अब पागल हो तुम लोग क्या, इतना पढ़ लिख के ट्यूशन कराओगे. दैट वाज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन. आज लोगों को लगता है एडटेक इज वेरी फैंसी, वेरी सेक्सी. नो, अल्टीमेटली काम जो है पढ़ाने का है हमारा, एंड दैट वाज द रियलिटी. सो बट एंड दैट वाज व्हाट वी आर. अच्छा बिजनेस प्लान दिखाओ. जिनसे पढ़े लिखे लोगों से बात करते, क्या बिजनेस प्लान है, हमारे बैचमेट सीनियर्स वगैरह, भाई कुछ नहीं है. पसंद है, अच्छा लगता है,
इस काम के लिए ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, अपना टाइम बिताना और अपने IIM बैंगलोर का ठप्पा हम बेच सकते हैं, हमने वो कोशिश शुरू कर दिया. दैट इज हाउ व्हाट वी हैड डन. अपार्ट फ्रॉम स्ट्रगल्स, आई एम श्योर एवरीवन गोस थ्रू दैट. सुबह रात को एग्जाम के एक दिन पहले रात को पोस्टर्स चिपकाने जा रहे हैं इसमें. सो आजकल लोगों को बोलते हैं अच्छा पोस्टर चिपका, हाँ, और कौन चिपकाता, बस पैसे थे नहीं, 2 जने हैं कंपनी में. मैं सैलरी पे था, सत्या था, तो कुछ कुछ मैं फंड कर देता तो मैनेज हो रहा था. सो वी हैड टू डू एवरीथिंग फ्रॉम चपरासी टू एवरीथिंग. वी वर टू CMD, वी वर द वंस. सब कुछ करा है उसके अंदर. रात को पुलिस वालों ने ही पकड़ा, उनको घूस दे के फिर निकले हुए हैं, भैया कह रहे कि पोस्टर क्यों चिपका रहे, यहाँ पे तुम्हारी मंशा क्या है, सब चीजें हुई हैं. तो ठीक है, भाई देख लो, पोस्टर है, कोर्स चलाते हैं, टीचर लोग हैं, टीचर के नाम पे बहुत रियायत मिल जाती है हिंदुस्तान में. मैंने ये देखा है, पुलिस वाला चालान नहीं काटेगा, बोल दो टीचर हो तो. आगे से याद रख लेना, तुम लगोगे नहीं, लेकिन कोशिश करने में क्या है. एंड द अदर थिंग व्हिच यू आस्क्ड वाज व्हाट सब्जेक्ट्स. तो 94, 95, 96 दिस कंटिन्यूड. 3 साल हो गए यार. साल में हमारा 4-5 महीने का काम होता था. जनवरी टू मार्च हम PDP कराते थे, अक्टूबर टू दिसंबर मॉक कैट करा के अपना टाइम पास कर लेते थे. बाकी टाइम क्या करे ये आता था. सो 95, 97 जनवरी फेब मार्च व्हेन वी ended the season, we realized कि अब कुछ और तो करना चाहिए है. Numbers were growing, but we knew this will obviously plateau at some number. 97, I think we did some 500 students in PDP. कितना है, 2-3 करोड़ का वो धंधा हो गया था. एंड बहुत कमाल लग रहा था कि बहुत पैसे आ गए हमारे पास. वो था कि हम सेंटर पे से जेब पे पैसे भर भर के लाए थे, बिकॉज हमारे को जितनी एनरोलमेंट होनी थी उतनी की उम्मीद नहीं थी. एंड मेनी पीपल जस्ट लैंडेड एट द सेंटर, वहीं पे आके पैसे दे रहे, कैश लेके आ रहे हैं. तो हम 4-5 जने खाली बोरी में, डब्बे में पैसे भर के लाए थे. जो पिक्चर में देखते वो हमारे साथ हुआ था. 2-3 करोड़ in the late 90s would be equivalent of like 20-30 crores today. अच्छा पैसा था. एंड frankly when we started, it was not we said we did, and many will say what was your business plan. नहीं था कोई बिजनेस प्लान, तब भी नहीं था, उसके 4-5 साल भी नहीं था. बट 97 वी सैट डाउन से क्या कर सकते हैं, वी हैव टू ऑब्वियसली एक्सपैंड. खाली थोड़ा ना बैठे रहोगे साल के 6 महीने. एंड सो वी वर्कड आउट किया, MBA वाला क्राउड आ रहा है, जनता हमें MBA बोलती है तो MBA चालू करते हैं. सो देन दैट इज देन इन 97 वी स्टार्टेड द रिटन टेस्ट प्रिपरेशन CAT के लिए. एंड CAT वाज वेरी इजी टू डू बिकॉज मालूम था क्या किया है. एंड बचपन से जितने MCQ वाले पेपर वो सब निकाल लिए मैंने. सो ये भी मालूम तो पढ़ा दूंगा. क्वांट DILR तो कभी डाउट ही नहीं था, क्वांट तो हो ही जाएगा, ये तो आता ही है. DILR भी हो जाएगा. प्रॉब्लम अंग्रेजी की थी, क्योंकि समझ नहीं आता उसमें पढ़ाने को क्या है. तो माय बिगेस्ट चैलेंज द फर्स्ट ईयर इन 97 वाज व्हाट टू टीच इन इंग्लिश. सो काम किया, एक बंदे ढूंढे, एक अच्छा फैकल्टी मिल गया, ही वुड टेक क्लासेस. So logistics मेरा शुरू से strong था. So he worked out the structure so that, and which is by and large the normal structure for all coaching institutes now. 3 बैचेस होंगे, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 और 7 to 9 तब हम करते थे. एक ही फैकल्टी तीनों लेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ. मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एक बैच आएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एक आएगा, सैटरडे संडे वीकेंड आके, ताकि अपना फुल यूटिलाइजेशन हो जाए कि 2 या 3 जने में मिनिमम फैकल्टी के साथ हम मैक्सिमाइज कर सकें. बट अंग्रेजी के लिए चैलेंज था. तो वो बंदा जो कहता है यार मैं देखो 2 to 4 एंड 4:30 6:30 ले लूंगा, 7 to 9 मेरा कुछ और काम होता है, कोई बात नहीं. 2:30 4:30 उसकी क्लास में अटेंड करता, 4:30 6:30 उसकी क्लास रिवाइज करता, 7 to 9 मैं क्लास ले लेता. ये होती थी मेरी अंग्रेजी. बिकॉज मालूम ही नहीं था क्या पढ़ाना है यार. कि इंग्लिश में मेरे को बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था. एंड पढ़ने का मतलब है किताबें, स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स, Amar Chitra Kathas, all kind of things I would read a lot. So reading was never an issue with me, and which is why RC was never a problem. Secondly, क्योंकि इतना पढ़ते थे, vocabulary ठीक ठाक थी. हमारे टाइम पे पेपर्स में vocabulary भी अच्छी आती थी, वो भी निकल जाती थी. So इसलिए मेरे को कभी समझ नहीं आया. बट कुमार राजेश was the person, पता नहीं कहाँ है आजकल, बट उसकी क्लासेस अटेंड करके के 2 हफ्ते में पता चला अच्छा इंग्लिश ऐसे पढ़ाई जाती है. देन इट बिकेम अ नॉर्मल थिंग. सर ये जो आप अभी तो टुडे CL Educate is a listed company, but आप जब इस जर्नी में थे तभी when did you feel that this is going to be something big, या ये इतना बड़ा होगा? I know you said कि बिजनेस प्लान नहीं था, पर कभी ना कभी वो रियलाइजेशन आया होगा ना कि यार ये तो शायद बड़ा बन रहा है अब काफी. वो कभी हुआ आपको? Actually, if you look at MBA की industry, this coaching, ठीक है, this I would say 2003 to 8 was possibly the golden period of this. Okay, that was the time lots of business schools came up. Suddenly the wave started towards MBA as a option, and the numbers multiplied. I still remember 1999, the number of people who took CAT was somewhere around 39,000. And 2007, that number became 278,000 or 255,000. Sorry. Okay, so it became something like 6-7 times in 6-7 years. Okay,
उसके बाद डिक्लाइन आया, उसके अलग कारण है, बट दैट वाज द टाइम इट्स हैपनिंग. हमारी एक किस्मत ये भी अच्छी थी, हमने दिल्ली में काम चालू किया. Because Delhi, for all practical purposes, is the coaching capital for everything in India, for anything which is national in nature. ठीक है. सो अगर यूपीएससी के लिए तो दिल्ली जाओ, सीए के लिए दिल्ली जाओ, इसके लिए दिल्ली जाओ, हर चीज के लिए दिल्ली बिकम्स. और दिल्ली की गूंज जो है ना बहुत दूर तक जाती है. एंड द अदर थिंग विच इज गुड अबाउट दिल्ली इज दिल्ली यूनिवर्सिटी. Delhi University gets students from all over the country. It's a national university, unlike Mumbai University, which has reservations, got no reservations. So you get students from all over the country, and they take that word of mouth back. So what was started happening was, यहाँ से बच्चे वापस जाते थे, बताते थे, तो फ्रेंचाइजी इंक्वायरी आने लग गई अपने आप. Okay, so that is what propelled us. We are very clear right from the beginning कि हम लोग जो है अपने सेंटर सारे नहीं चला सकते. It has to be a distributed model, because what we realize is ultimately it is the previous session she was talking about people. People is the most, in our business, a good faculty is the most critical part of the system. So what we said was, a good faculty is the person who can be your business partner, and who can, but that good faculty also should have sales orientation, or someone in his or her family should have business orientation. So those are the combination we started. शुरू में गलतियां की, शुरू के 4-5 फ्रेंचाइजी शुरू होके बंद हो गए, पैसा भी खा गए हमारा, नहीं मिला हमको, बट उसके बाद as I said, we made mistakes, learned from them, kept moving on. So 2003 to 8 we started growing a lot, and that is the time possibly लगा हाँ यार ठीक चल रहा है, अब बड़ा हो जाएगा, अब शायद बिजनेस प्लान की जरूरत है. तब तक तो वैसे ही चल रहा था उसमें. आफ्टर दैट देन 2008 के बाद देन ऑनलाइन हुआ, बाकी तमाशे हुए. वी कैन डिस्कस अबाउट दैट सेपरेटली इफ यू वांट, बट दैट वाज द टाइम. Yeah, so I wanted to just talk about that now, just the CAT exam itself, because I think आपके जितना किसी ने उसको एनालाइज नहीं किया होगा इतने सालों. अभी आई स्टार्टेड राइटिंग कैट अराउंड 2007-ish, तो मैंने थोड़े पुराने भी लिखे हुए थे, बट सो आई यूज्ड टू ऑलवेज फील लाइक के जो एक पहले फ्लेक्सिबिलिटी हुआ करती थी, यू कुड मूव अक्रॉस सेक्शंस, पता नहीं होता था बिफोर यू सिट फॉर द एग्जाम के आज 100 क्वेश्चंस होंगे, 150 होंगे, 50 होंगे. There could be surprises every day, right? And I felt that was like the true test of your preparedness. और थोड़ा सा ब्रूट फोर्स से भी आप निकाल सकते हो. अभी पहले थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्टनेस को एक एडवांटेज था, जो शायद अभी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कम है. हाँ अभी कम है, right? So what has been your experience having taught students and having looked at the exam itself? What do you think of the exam today in its current form, and how it has been your relationship and journey with the CAT exam? I'll agree with you significantly. The CAT maybe 20-25 years was a better paper of if you are looking at testing the student, okay? Because उसका सबसे बड़ा कमाल की चीज ये तो मालूम ही नहीं है क्या देखने आ रहा है. कोई भी एग्जाम हम लेते हैं, इंक्लूडिंग GMAT, GRE, you know what you are going to expect. In your school college exams, you know what you are going to get. So it is more a question of mugging up and vomiting. Okay, but when we look at CAT of the 90s, no sectional time limit. It is 4 sections. Your job to handle the time limits. Your job to make sure you don't mess up any one of the section. And there's a sectional cutoff also. जो है ना, जो street smartness चाहिए, जो ability to manage time, the ability to make sure अच्छा इतना कर लिया, अब करके आगे चलो, अगले पे चलो, इसी पे मत लगे रहो. वो चीज जो है आज का पेपर नहीं कर सकता. So to me, one of the biggest drawbacks of the current pattern of this paper is the 3 sectional time limits. You make this paper, retain the paper as it is. I don't have a problem. But remove the sectional time limit, let it be 120 minutes, and let the kid decide how much time to spend where. Because in real life also, you have constraints. But within those constraints, you have some flexibility also. This paper is making it completely a standardized kind of a paper, which maybe is a requirement because it is being done in multiple slots. Okay, so maybe because it's a multiple slot, it may still be a requirement, but मेरे हिसाब से तब भी जो है sectional time limit हटाने में कोई नुकसान नहीं है. It will definitely improve the quality of students who will clear this paper. And sir, if you could tell us about जब every day, every year when CAT happens, तो नवंबर का वो Sunday when CAT happens, and जैसे you must have written CAT how many times, sir? 95 से हर बार लिया है. 1990 में अपने लिए, एक 2003 का नहीं लिया था, लीक हुआ था ना जिस साल, उस साल नहीं ले पाया था मैं, बिकॉज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स ही मिस्ड. उस टाइम पे क्या होता है, SBI ब्रांच में जाके फॉर्म लेके आना पड़ता था. आफ्टर दैट द फॉर्म वाज नॉट अवेलेबल. तो मेरा था, मैंने सप्लाई करना था, वो मिस कर गया था. मैं कहा चल तू ले लिया, मेरा क्या फर्क पड़ता है, और उसी साल लीक हो गया पेपर. So apart from that, 2003, every year I have taken the paper from 1995. So how is that analysis का, like, do you also feel excited when writing the exam कि बाहर आने के बाद कि अभी इसका analysis करना है, लोगों को बताना है? Because I remember it used to be a very big
इवेंट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ कट ऑफ जानना के कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या कट ऑफ दे रहा है वाज लाइक अ नेशनल इवेंट. मतलब यू राइटली सेड इन 2007-8 तो न्यूज चैनल्स के टिकर्स में भी आया करता था हाँ. कि व्हाट इज द कट ऑफ दैट एवरीबॉडी इज रिकमेंडिंग. हाँ. जैसे इलेक्शन के एग्जिट पोल्स आते हैं वैसे ऑफ कोर्स देन आई थिंक इट लॉस्ट पीपल लॉस्ट इंटरेस्ट इन नहीं, ये सब पेपर लीक का कमाल है. 2003 के पहले तक कोई नहीं पूछता था. उस साल पेपर लीक हुआ, काफी हंगामा हुआ था. उसके चक्कर में ये लाइमलाइट में आ गया. हम लोग को भी टीवी अपीयरेंस वगैरह का मौका मिल गया जो हमें कोई पूछता नहीं था. एंड सो 2007-8 तक चलता था रेगुलरली. ठीक है, वो आते थे. उसके बाद वो भी बोल हो गए, हम भी बोल हो गए, सब अपने अपने से चल दिए. एंड 2003 तक जो है कैट 2002 तक सॉरी कैट जो है आंसर की भी नहीं देता था, पेपर ही देता. उससे पहले पेपर भी नहीं देता था. जाओ दे के आ जाओ, तुम्हें बाद में चिट्ठी आएगी तो पता चल जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, नहीं आएगी तो नहीं हुआ. बाद में हुआ कि चलो पेपर देने लग जाते हैं. एंड तभी मेरा पेपर दे तो आंसर की भी दे दो. एंड आई स्टिल रिमेंबर वन IIM प्रोफेसर सेइंग, नहीं व्हाई शुड वी गिव आंसर की, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर गिविंग द आंसर की. मैं कहा तो हमारी आंसर की पे सॉल्यूशन दे दो फिर, कि इसी के बेस पे कर दो. हम चार आफ्टर ऑल देयर आर फ्यू क्वेश्चन, देयर इज अ डिबेट. अगर मैं कुछ आंसर बोल रहा हूँ, अंकित कुछ और बोल रहा है, who is the right person, किसके बेस पे चलें. But fortunately very soon they started doing that. I think there are some of the positives also are question paper आने लग गया है, आंसर की आने लग गई, ऑब्जेक्शन होने लग गए कि so that has improved. Otherwise till 2007 or 8 I would say almost every year every paper had flaws which were not accepted by IIMs. So sir, now coming to things that haven't changed, which is that कि बहुत सारे लोगों ने इधर से भी कैट लिखा होगा, दूसरी एग्जाम्स भी लिखे होंगे. अभी अगर आपका अच्छा नहीं गया है, अभी CL की आंसर की भी उन्होंने चेक की होगी. अब तो कैट ने दे दी ना. कैट ने दे दी, मतलब व्हाटएवर परसेंटाइल प्रेडिक्शन दे दिया, परसेंटाइल प्रेडिक्टर, बी स्कूल प्रेडिक्टर, वो सब डाल दिया हमने. हाँ, तो वो सब देखने के बाद अभी जिसको पता है कि उसका तो कुछ नहीं होने वाला इस साल, उसे क्या करना चाहिए? शुड दैट पर्सन वेट एंड टेक कैट अगेन? पहले तो जैट है ना, पहला काम है जैट. देखो एज्यूमिंग दैट भी अच्छा नहीं जाता है, उसके इसमें को अलग लेके चलते हैं. बट फॉर द फर्स्ट थिंग इज यू स्टिल हैव अबाउट 3 weeks फॉर दैट. Don't look at retake at this point of time. Don't get into that stupid thing called it is ABC or nothing. XLRI is as good as ABCL, as good as FMS. So ABCL, XL, FMS भैया सब एक ही है. XLRI प्लीज चले जाओ, अगर अच्छा मिलता है तो चले जाना चाहिए. है XLRI होता है तो XLRI प्लीज full seriousness दो. Don't think कि XLRI is inferior. It is not. It is as good as ABCL, if not better. Okay, that's the first thing. And 3 weeks, your focus should be 2008 से पेपर उठाओ सारे एंड 2023 तक के सबका वर्बल अच्छी तरह कर लो, डिसीजन मेकिंग अच्छी तरह कर लो. क्वांट 2016 से उठाओ. क्वांट यू विल फाइंड टू बी इजियर देन दैट ऑफ कैट, दिस ईयर्स कैट दैट इज. ओके, इस साल तो काफी लोगों की हालत खराब हुई है क्वांट के अंदर. बट एज आई ऑलवेज से, हालत इसलिए खराब होती है लोगों की पेपर के अंदर क्योंकि मुश्किल सवाल छोड़ने की इच्छा नहीं रखते, वो पीछे पड़ जाते हैं. इसको आज मना के ही मानेंगे, वो मानती नहीं है. वो रियलिटी है, रियल लाइफ में भी दिखता है, पेपर में भी दिखता है. ठीक है, so that is the only issue. So if you just be sensible in this paper. Secondly, the huge advantage you have in ZAT is that it is no sectional time limits and 175 minutes as compared to CAT 40/3 which is 120 minutes. So time की कमी नहीं है. CAT में, क्वांट में या वर्बल में लोगों को तकलीफ इसलिए होती है कि टाइम की कमी होती है. You will not have a time constraint here. You can comfortably solve the paper in the given time. So उसको देखो. If you find वो भी नहीं हुआ, कुछ नहीं है, तो बिफोर यू गो फॉर रीटेक, देखो हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा सबको रीटेक करना चाहिए. ठीक है, नॉट गुड फॉर यू. यू नीड टू फर्स्ट बी वेरी ऑनेस्ट एंड शीशे देख के पूछना चाहिए भैया औकात है रिपीट करने की कि नहीं. डू आई थिंक इफ आई रिपीट आई एम गोइंग टू improve my score significantly? If I am at 90-92 percentile this year and next year again I get a 95-96, I'll still get the same set of colleges. It is not that they're going to change. They will still be the same. From a 90 to 93, you need to get to a 98, 99 to get to the next level of colleges. Otherwise, nothing is going to change for you. Then why do you want to repeat? So, which is I always believe कि पहला चीज ये देख लो यार, do you think you have a reasonably good chance of improving? इस साल तैयारी की थी कि नहीं, ढंग से की थी, तब भी नहीं हुआ. क्या गैप से, उसको देखो, फिल कर सकते हो कि नहीं. सेकेंडली, अगर नहीं तैयारी की थी, क्या गारंटी इस बार भी करोगे? ये कोई मैं या कोई और नहीं तुम्हें बता सकता. इट इज अ कॉल यू नीड टू टेक फॉर योरसेल्फ. डू आई थिंक आई विल बी एबल टू मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन माय स्कोर्स नेक्स्ट ईयर? इफ यस यू कैन टेक अ रीटेक. इफ नो, या तो लाइन चेंज करो या तो जो कॉलेज अच्छा ठीक ठाक मिल रहा है तुम्हारे स्कोर पे उसको लो और आगे चलो. एक क्वेश्चन मुझे पूछना था, ये
आप बात कर रहे थे कैट के नंबर्स की ऑफ रजिस्ट्रेशंस वगैरह 10-15 साल तक बीच में स्टैग्नेशन क्यों आ गया? आई थिंक दिस इज द ईयर व्हेन एक्चुअली देयर हैज बीन अ Yeah. जंप इन द रजिस्ट्रेशंस अगेन. सो व्हाई डिड द कैट एग्जाम लूज फेवर विद द Okay. जनता? We need to be clear, our industry, CAT preparation is built on failures. ठीक है? This is a negative industry by the way. ये इंडस्ट्री क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि स्कूल कॉलेज ने तुम्हें ढंग से नहीं पढ़ाया. अगर वो ढंग से पढ़ा लेते तो हम बेरोजगार होते या कुछ और काम कर रहे होते. दैट्स द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन. इट्स लाइक सेइंग इन्वर्टर क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि बिजली नहीं आती ना. बिजली आती तो इन्वर्टर की चिंता कौन करेगा? So that is the way we are. We are like an inverter. We are there because someone somewhere is not doing his or her job correctly. ठीक है? Now coming to the second part, which you said इसके अंदर numbers क्यों बढ़े? 2002, 3, 4, if you look at the fees for MBA program, it was that you could have easily done an MBA in about 4-5 lakhs rupees for 2-year program. By the time we hit 2007-8, that cost of doing an MBA went up to something like 14-15 lakhs. When you are doing a 3-4-5 lakh rupee MBA and getting a 6 lakh rupee job, it was worth it. When you're doing a 15 lakh MBA and getting a 6 lakh, 7 lakh rupee job, it is not worth it. That was the issue. The output was not getting what they think they should get after doing this kind of investment. Secondly, if you look at the number of MBA institutes, 2002, 3, 4 versus 7, 8, they almost doubled. Then सबको एडमिशन मिल रहा, किसी को काम नहीं मिल रहा. Then you also had those global economic crisis वगैरह also 2007, 8, 9 के आसपास. Then वो उसका भी थोड़ा impact है. But I think the bigger impact was the number of colleges mushroomed and the fees became almost 3 to 4 times, but the salaries went up only marginally. So it did not make sense for many people to go for it. And who are the people who were driving this boom? They got your top 10% है ना, उनको गौतम पुरी की करियर लॉन्चर की किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप निकाल सकते हैं. तैयारी करते हैं हमारे साथ, हमको थैंक यू बोलते हैं, पैसे देके जाते हैं. वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट. ठीक है? But they could have easily got through without us also. That's something we need to be very, very conscious of. कि we were fortunate they chose us. But the नीचे वाले हैं ना, जो नीचे के 70-80% हैं, उनको सपोर्ट ज्यादा चाहिए होता है. They are the ones who come. And when they realize कि मेरा टॉप में जाने का चांस कम है, उसके बाद ये हो जाएगा और जॉब भी अच्छी नहीं मिलने का चांस है, they will stop doing. The second thing which happened in 2009 is something that you may not be aware. Academic gender diversities came in. Marks of 10th 12th graduation became important. अगर वो चीज होती मेरे टाइम पे तो मैं तो नहीं बन पाता. ठीक है? So suddenly it realized that being a girl there was an advantage, being a non-engineer was an advantage, and then if you have good marks in 10th 12th graduation, you could get a call. So there was a situation when people with 99.9 percentile don't get a call now. If you don't have 10, you have 90, 90, 80 or whatever that number is depending on the category. So 99.92 percentile पे रोहतक is the best call. So those kind of things started happening there. अभी भी होता है, but उस टाइम पे certainly बहुत ज़्यादा हुआ था. अब people have probably reconciled and probably it's coming back. And the number of good colleges have also increased. Sir, agar if you're allowing more diversity to come in, then shouldn't it lead to more accessibility and more people wanting to write the exam? के even more women would feel confident कि हाँ मेरा भी हो सकता है, so I should also write the CAT and but those numbers have not gone up in that proportion. They have not. They have not gone up in that proportion. In fact, if you look at it, for the 50%, 50 नहीं actually 47-48% general category seats होती हैं after looking at everything. They would be, my guess is about 70% of the population. For the 50% reserve seats, they are 30% of the population. So वो ratio गलत है. And वो ratio गलत इसलिए है because people are not informing. How many people go and talk about these things? जैसे कि है, as career launcher, I insist, दो मैं ये भी क्या बताऊंगा कि हमारे partners भी सब नहीं करते ये. I insist we should not talk percentiles. Percentile is a very, very wrong number to look at. If I say 99 percentile, मैं percentile बोल रहा हूँ, लोगों को percentage सुनाई देता है. प्रॉब्लम वहां पे है. जबकि 99 परसेंटाइल इस साल जो है 35-37% पे 40% मार्क्स पे आती है. 99 परसेंटाइल हैज नेवर बीन ओके एक्सेप्ट फॉर वंस, नेवर बीन मोर देन 50% मार्क्स. सो आई शुड टॉक मार्क्स. सो वो एक इशू है. देन पार्टली आई वुड से इफ यू मूव आउट ऑफ द टॉप सिटीज, इफ यू गो टू द स्पेशली टायर 3, टायर 4 cities, I don't think the girls get that much opportunity. Thirdly, outside the top cities, the non-engineering colleges are poor in terms of academics and other activities. So यहाँ पे दिल्ली का तुम्हारा खराब कॉलेज भी जो बोलोगे वो गोरखपुर के अच्छे कॉलेज से अच्छा है. So the quality of education and the inputs that they get also are very poor, and then they don't have the confidence to go ahead. दूसरा जो है
वो मेरा पेट पीव है. I think English is overemphasized. Yeah. English is overemphasized. The number of brilliant students I see on the wayside because CAT को अंग्रेजी में इतना अहमियत दी है is phenomenal. I completely agree with ठीक है? you, sir. It is stupid. I don't know why they are stuck with English. हाँ ठीक है, language check करनी है करो. I am not saying don't do it. But what stops you from when there's a significant population which is studying in Telugu, Gujarati, Hindi, Bengali medium, we need to make sure that we need to get into those areas also. But I think IIMs are just stuck with these things इन चीज़ों के बीच में. हर साल जब भी मौका मिलता है या इस साल जैसे हमारा एलुमनाई मीट है, जाके मैं फिर गाली दे के आ जाऊंगा, अपनी भड़ास निकाल दूंगा, वो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देंगे, बात खत्म हो जाएगी जब तक कोई और आके नहीं बोलता. But these are issues which are there as far as I see. Awesome, sir. This was super insightful. Abhi, in the interest of time, I need to allow some questions from Sure. the audience. I have like 50 more questions, but I need to rein myself in. So yes, guys, the floor is open to you all. Okay, so my name is Girish and I appeared for CAT this year. So my very first question is, इस साल के CL के मॉक इतने टफ क्यों थे? कैट देखने के बाद भी बोल रहे हो. That was just a joke question. So my main question is, sir, you have been in this environment of CAT since last 25, 26 plus years. Haven't there been a time that you feel bored being in the environment of CAT only for this long period as a career? Okay. First of all, it is not only CAT. Law is another area we are into. We are into a couple of other areas as such, उसमें, and we have been able to identify these niche areas and get into them. So वो एकदम सही है. Remember what? Okay, that the person, I don't remember her name. Rashi had said कि niche area में घुसो, head on मत लो. हमने वो हरकत करके भी देखी इंजीनियरिंग में, हेड ऑन लेने की कोशिश की, धक्का खा के गाली खा के वापस आ गए, बर्बाद हो गए थे उसमें. ठीक है. And but these niche areas like law and others, so we are good at identifying such areas and उसमें भी घुस जाते हैं. ठीक है. But if I look at your question, या मैं कहूँ सब बंद कर दो. To me, it does not matter whether it is CAT है, CLAT है, कुछ और है. Ultimately, what gives me the kick is inside the class, interacting with students like you. That is what gives me the kick. वो मजा आता है पढ़ाने में, जो since you are part of career launcher, जुगाड़ solution बनाने में मजा आता है. ठीक है. And which is why मैं कहता हूँ यार पेपर मुश्किल नहीं था. तुमने चॉइसेस नहीं देखी, तुमने वो सब नहीं किया, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है. पेपर को गाली मत दो. Goes without saying, this year the paper was more difficult than the earlier years as far as quant is concerned. And as long as I get to teach, which is what I said earlier, that जब तक है पढ़ाऊंगा तो सही, नहीं पढ़ा पाएंगे तो ठीक है, तब सब सोचेंगे. Hi, sir. My name is Prasha. So, I'm currently in my second year of college and I'm doing BBA only. And I intend to do MBA as a next step. So, I have 1 year in my hand. So, I just wanted to ask you that what's the difference between taking a personal coaching for CAT preparation vis-a-vis a group coaching where definitely there's a competitive environment, but along with managing a regular college, how challenging is it from a student's perspective? Okay. And the second part of my question is how important is WorkX for MBA? Let me take the second part first. WorkX for MBA, because that is possibly going to be relevant for many of you. I think WorkX for MBA is overrated. I went with 3 years work experience. Okay, I can tell you with personal experience, did I learn more than the people who were there? Yes, from in specific areas, HR. कुछ चीज़ों में, क्योंकि वो चीज़ें देखी होती हैं, we can understand them better. If I look at purely from a career perspective, I have found the earlier you do your MBA, the better off you are. Because जो 2 साल 3 साल मैंने काम किया इंजीनियरिंग में in HPCL, did it get the full weightage after MBA? No. I was given a 1 year advantage. ठीक है, तुम्हारे को ट्रेनिंग नहीं कराएंगे, तुम डायरेक्टली आ जाओ. But that was it. So purely from a career perspective, you tend to lose out. And the gains of that work experience are not that huge. Because especially in India, even if you are working with McKinsey after your graduation, PPT बनवा देना. ठीक है ना? PPT बनाने का काम करेंगे, थोड़ा बैक एंड सेकेंडरी रिसर्च करा लेंगे, उसके बाद आप MBA करने जाओगे तो ऐसा कोई नहीं, आपको बहुत कमाल मिलेगा कुछ. So मेरा suggestion to everyone is exactly opposite of what I did. I would say the best time to do an MBA is immediately after graduation. The earlier you do, the better it is for your career. And which is why, जैसे लास्ट ईयर भी, उससे साल भी, हर साल 2-3 जने होते हैं जिनकी अहमदाबाद कॉल आती है, बोलते हैं वी वांट टू डेफर एंड वर्क एक्सपीरियंस लेके जाएंगे. मैं सबको मना करता हूँ. कुछ बात मान जाते हैं, कुछ नहीं मानते. इट्स देयर इंडिविजुअल कॉल. बट माय ओपिनियन इज वेरी क्लियर. वर्क एक्स इज ओवररेटेड. इट इज हेल्पफुल, नो डाउट अबाउट इट, बट उतना ज्यादा नहीं है. Otherwise, most of the freshers would be completely miserable or failures in MBA. That is not the case.
Okay, so that's the first part. उससे पहले जो आपने पूछा था कोचिंग का, पर्सनल वर्सेस ग्रुप, उससे पहले एक और सवाल पूछो, कोचिंग चाहिए क्या? द प्रॉब्लम इज अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ यू आर व्हाट आई कॉल द ट्यूशन जनरेशन. बचपन से नर्सरी केजी से ट्यूशन कराए जा रहे हैं, तो काम करने की आदत, काम करने के साथ पढ़ने की आदत, खुद पढ़ने की आदत, प्लान करके करने की आदत छूट गई है. And that is what you need to look at. Somewhere along the line you'll have to leave that. कॉलेज में ट्यूशन जाते हो, नहीं जाते हो ना, या अभी भी जाते हो? सेल्फ स्टडी है ना, ये भी कर सकते हो. Okay, so my first thing will be कोचिंग चाहिए कि नहीं. Second question to ask is what are my requirements? Do I need support in all areas? Okay, or do I need support only in one area? If you need support in one area only, then there's good online courses available. You could look at them. If you need support in all areas, go for a full-fledged program. And obviously, classroom versus online. The advantage of classroom is there's a faculty, there's a group of people around you, and उसको आप फैकल्टी का सर खा सकते हो, डाउट क्लियर करा सकते हो, हो सकता है लोगों का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, लेकिन आने जाने में दिल्ली जैसे शहर में टाइम बर्बाद होता है. So these are the pros and cons, and online where you are on your own with less faculty support. So based on that criteria, you need to decide for yourself. So I'm sorry, I'm not giving you an answer. I'm saying these are the criteria. Please pick up based on your requirement. And if you think you can do it yourself on self-study, the only thing you have to do is take study material and test series and do it. I am not a big fan of YouTube. Hi, sir. I'm Devansh. And my first question is that since you are taking CAT since 25-30 years, so how does CAT evolve from 90s till date? And second question is there is a sudden rise in CAT applicants post-COVID. So how will it affect future MBA aspirants as the seats in most B school are not increasing by that frequency? Okay, पहली चीज, seats in B school से कोई फर्क नहीं पड़ता. Ultimately, those people have to get jobs. 2006, 7, 8, the problem was seats बहुत बढ़ गई थी, सब MBA कर रहे थे, job नहीं मिल रही थी. So that is immaterial. And the reason why I think the numbers have gone up this year is if you look at the placement statistics of Tier 2, Tier 3, Tier 4 engineering colleges. You will find it has gone down significantly and hence the numbers have gone up. Okay, is it sustainable? I don't know. We'll need to wait for a couple of years. Is it a one-off thing? Because the same thing we have seen at least twice more. .com boom था एक टाइम पे 99 2000, उसके बाद .com बस्ट आया, अगले साल बढ़ गए थे, नौकरियां निकलती हैं. सो व्हेनेवर द इकोनॉमी गोज डाउन, यहाँ पे कैट पे लोग आ जाते हैं कि कहते हैं चलो पढ़ ही लेते हैं, नौकरी तो है नहीं. सो दैट इज अ पार्ट उसके अंदर. ठीक है, तो मैं पहला सवाल क्या पूछा था? How does CAT हाँ, evolve CAT, from देखो 90s CAT till ना, date? from a speed based test, if I look at the big picture, from a speed based test it has become a comprehension and logic based test. Okay, so if I look at my paper, it was 240 250 questions, 240 questions. Okay, and 2 hours. Okay, and आजकल लोगों को लगता है कि यार 2 घंटे में 76 सवाल करना बहुत महंगा, 66 सवाल करना बहुत टाइम, बहुत मुश्किल है. हम लोग 200 प्लस 240, आदत की बात होती है, वो गैस होती है ना, इट विल एक्सपैंड. तो हम लोग का भी वही है, टाइम ज्यादा है तो हम भी धीरे धीरे काम करने लगते हैं. एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड. ब्रॉडली स्पीकिंग, लेस ऑफ मेमोरी, मोर ऑफ लॉजिक. Okay, and more numbers oriented, because earlier it used to be 50% English and language and 50% DI and quant. Okay, so focus is more towards mathematical and numbers because the kind of opportunities which are available are possibly more towards that. Okay, हाँ, I think essentially यही changes आए हैं इसके अंदर, अगर पेपर को देखते हैं. And this year even generation 2 and generation 3 IIMs are also struggling for SIP. So how नहीं, does वो प्रॉब्लम नहीं आएगी. देखो, what is you need to remember, one thing I don't like about IIMs is they have not increased the capacity. जब मैं पास आउट हुआ था बैंगलोर से 150 की कैपेसिटी थी, आज 400 450 की है. 30 साल में साला 3 गुना हुए, क्या मजाक कर रहे हो? second third generation की काफी हाँ, इनको जो है ISB इनके बाद शुरू होके इनका डबल हो चुका है. That's the same thing. Okay. So I'm not in favor of so many new IIMs being opened, because once you spread so much, you will have a struggle of faculty and location. बोध गया कहाँ है हिंदुस्तान में, आधे लोगों को मालूम ही नहीं है यार. संबलपुर लोग पूछते हैं कि अच्छा गूगल मैप खोल के देखते हैं. So and the other part is there how will the industry interaction be for those students who are in these places? This will be a challenge. Okay. However, one of the good thing is these new IIMs, Ranchi, Raipur, Bodh Gaya, Jammu, etc., they have been putting pressure on the Tier 2B schools. So if you go back 5 years, इनको पूछता नहीं था. अब now you look at an IMT is being compared to IIM Amritsar. I don't think they're comparable, but people compare, students compare.
सो वो चीजें जो उन पे प्रेशर आने लग गए, so it is going to be beneficial from the point of view of these institutes also. They will have to up their game also. Okay. Thank you, sir. Sir, our next guest is from IIM Ahmedabad. So abhi when a student comes to you and says ke sir dono jagah se convert hua है, IIMB, IIM Ahmedabad, what do you say? आपका honest answer दो. What do you tell Ahmedabad. the person to join? अहमदाबाद. मैं बैंगलोर इसलिए गया क्योंकि अहमदाबाद नहीं मिला. ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट यार. यार देखो, अल्टीमेटली अगर मेरे को अहमदाबाद मिलता मैं वहां जाता, रोता, क्योंकि बाद में मुझे पता चला वहां बहुत काम कराते हैं. बैंगलोर आसान था. ठीक है, मैं बहुत रोता, दुखी होता, लेकिन जाता तो सही ना. And secondly, whatever I might say, I'm from Bangalore. I know there is no difference between the placements of A, B, C, L. एक ही चीज है, सेम चीज मिलेगी. My niece passed out from Lucknow last year. बेन में गई है. वो बहुत दुखी थी. A, B ने कॉल नहीं दिया बिकॉज उसका क्या, वो लॉयर है, उसका लॉ में 65% है, ग्रेजुएशन में नहीं मिला. बट अल्टीमेटली A और B से भी बेन में ही जाती है, यहाँ से बेन में क्या फर्क है. बट रेपुटेशन वाइज अहमदाबाद इज नंबर 1. I need to be honest about it, and hence I would say Ahmedabad. बी और सी में मैं बोलूंगा यार, बी और सी में नहीं. टेक योर कॉल, टेक योर कॉल. देखो, आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू माई जॉब. माई जॉब इज जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, आई एम नॉट गोइंग टू पुश दैट. Okay, from a reputation perspective, B has the advantage now of location. वो गलती से बहुत अच्छी लोकेशन बन गई है, उसमें IIM बैंगलोर की कोई गलती नहीं है. That वो सिलिकॉन कैपिटल, स्टार्टअप कैपिटल, रिचेस्ट बन गया है, तो उसमें इंस्टीट्यूट की क्या गलती, वो तो पहले से बैठी हुई थी वहां पे. सो इफ यू आर लुकिंग एट दैट काइंड ऑफ अ थिंग, देन बी. बट फ्रॉम अ फाइनेंस पर्सपेक्टिव, सी इज इक्वली गुड if not better. So B and C you can take your call, but if it is A, B, C, L, मैं बोलूंगा blindly अहमदाबाद चले जाओ, as long as you are sure तुम उसको झेल पाओगे. Awesome, sir. This is super insightful. Thank you for being so frank, honest, and also giving us the true flavor of everything that you do. I think you are an inspiration to teach for 30 years with the same passion, to keep coming year after year. Every November, I see the same energy in you when you're doing webinars, when you're talking to students. And it's truly inspiring. I hope that we can learn from you. Guys, a big round of applause for sir. Thank you.